आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। स्वतंत्रता विजय उत्सव की इख्तितामी तकरीब के लिए एलबी स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी ने डीजीपी और कलेक्टर के हमरा तमाम इंतजाम का लिया जायजा। मुत्तुगुड़ा नलगुंडा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का आगाज़। टीआरएस कायदीन और कारकुन कार रैली के जरिए पहुंचे। वज़ीर आला केसीआर ने जलसे आम से किया खिताब। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के दरिंदा सिफत मुजरिमीन को दोबारा जेल भेजने के अहकाम जारी करे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी भलाई इक़दाम और हुकूमती स्कीमात की अमलावरी में मसरूफ़। सरकारी स्कूल्स में नाक़िस मिड डे मील सरबराह किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने नलगुंडा के असेंबली हल्के मुंदगुड़ा में अपनी सियासी ताकत का अमली मुजाहरा पेश किया। ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुनक़्क़दा जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मकामी अवाम से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल टीआरएस के लिए करें, क्योंकि अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो किसानों के लिए नुकसानदा होगा। उन्होंने बताया कि वोट अवाम का हथियार है और इसे मुसर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने मरकज़ी हुकूमत की मिसाल देते हुए कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान हुकूमत ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। वज़ीर ने कहा कि मुंदगोड़ में कृष्णा और श्री सालम से साफ और शफाफ पानी सरबराह करना टीआरएस हुकूमत का कारनामा है। वज़ीर आला के हमरा स्टेज पर सीपीआई कायद वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे, जिनको मुखातिब करते हुए केसीआर ने कहा कि सीपीआई और सीपीआईएम मुंदगोड़ से दिल्ली तक टीआरएस का साथ देगी। वाज़ेह है कि मज़कूरा रैली में शिरकत की गरज से रियासती वज़रा, टीआरएस कायदीन और कारकुन कार रैलियों के जरिए जलसेगाह पहुंचे थे। मज़कूरा जलसे आम को प्रजा दिवीना सभा का नाम दिया गया था। यहाँ इस बात का तज़किरा भेजाना होगा कि 21 अगस्त ही को मुंदगोड़ में बीजेपी की जानिब से जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसको मरकज़ी वज़ीर अमित शाह खिताब करने वाले हैं। రేపు డోల్ బాజాలు పట్టుకొని అమిత్ షాను దోలుకొని ఇటు కొత్తారట. ఎవరికి కావాలి నీ డోలు బాజా భజంత్రి, నీ పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు? మునుగోడు చైతన్యం ఉన్న గడ్డ. ఇక్కడ 5 సార్లు కమ్యూనిస్ట్ ఎమ్మెల్యేలకు ఉన్నారు. రైతాంగం అంతా చైతన్యమై ఉన్నది. రేపు దయచేసి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్న కేంద్ర హోంమంత్రిని, మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పాలసీ ఏందో, కృష్ణా జలాల వాట మీరు ఎందుకు తేల్స్తలేరో, మీ దద్దమ్మ చేతగాని తనమేందో రేపు చెప్పాలి మునుగోడులో అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. చెప్పరు, ఏది అడిగినా చెప్పరు. మొన్న రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరిగినప్పుడు కూడా ఒక 20 క్వశ్చన్లు అడిగిన నేను, ఒక్కదానికి కూడా సమాధానం లేదు. ఒకటే మాట ఆలోచించాలి మిత్రులారా, దయచేసి ఒకటే ఒక మాట. 8 ఏళ్ళైంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చి, ఏ ఒక్క మంచి పనన్నా జరిగిందా? ఎవరికి జరిగింది? ఒక దళిత వర్గానికా, ఒక గిరిజన వర్గానికా, మహిళా లోకానికా, కార్మిక వర్గానికా, రైతులకా? ఎవరికి ఏం మేలు జరిగింది? మేలు జరిగితే మాకు కనబడదా? మేము లేమా దేశంలో? ఒక్కటంటే ఒక్కటి మంచి పని లేదు. లేకపోగా జరుగుతున్నది ఏంది? ఎయిర్పోర్ట్లు అమ్ముతున్నారు, విమానాలు అమ్ముతున్నారు, రైళ్లు అమ్ముతున్నారు, బ్యాంకులు అమ్ముతున్నారు, గ్యాస్ కంపెనీలు అమ్ముతున్నారు, రోడ్లు అమ్ముతున్నారు. మొత్తం అమ్ముడు మొదలుపెట్టింది వరుస పెట్టి. ఇప్పుడు యాడికి వచ్చిండ్రుగా? అన్ని పోయినాయి, ఇంకా అన్ని పోతున్నాయి. ఇక మిగిలింది ఏంది? ఇది బాగా వినాలి మీరు దయచేసి. మిగిలింది ఏంది? రైతులు, భూములు, వ్యవసాయ పంటలు. ఒక్కటే ఎంబడబడుతున్నదిగా, ఒకటే తరిక.
ఇది చాలా తీవ్రంగా మునుగోడు పిల్లలందరూ ఆలోచించాలి దయచేసి. మా తల్లులు, మా అక్కజెల్లెండ్లు, రైతు సోదరులు, రైతు కూలీలు మన నోట్ల మన్ను వేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. నేను అసెంబ్లీలో చెప్పిన, మీరు టీవీలలో విన్నారు, పేపర్లలో విన్నారు. బాయి కాడ మీటర్ పెట్టు, కేసీఆర్ పెడతావా పెట్టవా? నేను చచ్చినా సరే పెట్టరని నేను చెప్పిన. నేను పెట్టగాక పెట్టా. ఎందుకు? బాయి కాడ మీటర్ పెట్టమన్నాడు వట్టి ముచ్చట కాదు, దాని వెనుక చాలా మతలా ఉన్నది. ఎరువుల ధరలు పెంచాలి, కరెంటు బాగా పిరం చేయాలి, పండిన పంటలు కొనద్దు, రైతు తటపార కింద పెట్టాలి. ఇక మాతో కాదు, వ్యవసాయాన్ని సాలించుకోవాలి. సాలించుకుంటే ఏమవుతుంది? మోడీ గారి దోస్తులు పెద్ద పెద్దోళ్ళు సూట్ కేసులు పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నారు. మీతోనిగా ఇనే బాబు లొలిపెట్ట, మీతోని కాదు వ్యవసాయము, మేము చాలా గొప్పవాళ్ళము, మేము వస్తాం, మీ భూములని మాకు ఇచ్చేయండి, కార్పొరేట్ వ్యవసాయం పెడదాము, మీరు ఇళ్ళనే కూలి పని చేయండి అనే కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. తస్మాత్ జాగ్రత్త. దయచేసి రైతు సోదరులు, మీ అందరికీ తెలుసు, చిన్న రైతు పెద్ద రైతు అందరికి కలిపి ఈ మునుగోడు నియోజకవర్గంలో క్రమము తప్పకుండా 1,01,000 మందికి రైతు బంధు పథకం వస్తూ ఉంది మునుగోడు నియోజకవర్గంలో. వస్తలేదా? ఏం చప్పట్లు కొట్టలేదు మీరు? అమ్మ వస్తలేదా? 1,00,000 మందికి రైతులకు ఎవరికి ఎంత భూమి ఉంటే అంత. అది కూడా ఎట్లొస్తుంది? దరఖాస్తు పెట్టేది లేదు, దండం పెట్టేది లేదు, ఎవరికి 5 రూపాయలు లంచం ఇచ్చేది లేదు. రైతు బంధు డబ్బులు ఎట్లొస్తాయి? హైదరాబాద్లో మేము బ్యాంకులు వేస్తే బ్యాంకుల జమై మీ సెల్ ఫోన్లో టింగు 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 మనం అవుతుంది. भारत स्वतंत्र वज्र उत्सव की अख्तामी तकरीब LB स्टेडियम में 22 अगस्त को मुनक्किद की जाएगी, जिसमें वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। इस तकरीब का जायज़ा लेने की ग़रज़ से चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी, इंचार्ज कलेक्टर हैदराबाद अमूय कुमार के हमरा LB स्टेडियम पहुँचे। उन्होंने इंतज़ामात का तफसीली मुआयना किया और ज़रूरी हिदायतें भी दी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में 2 हफ्ते पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स भारत स्वतंत्र वज्र उत्सव के नाम से किए जा रहे हैं, जिसका 22 अगस्त को इख्तिताम होगा। इस मौके पर JMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। भी नहीं होता, वो भी इधर देखे तो इधर देखते, नहीं तो नीचे देखे तो उधर ही दिखता उन लोगों को। उससे नहीं भाई, वहाँ उसके अंदर नहीं बोल रहे, बाहर बोल रहे, तुम लगाओ कोई ऐसे। कोलिंग में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी स्कीमात की अमल आवरी और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन अहम ख़बरों के साथ आइए दीगर ख़बरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को मजलिस के मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने 30 दरख्वास्त गुजारों में 11,18,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि जैसे जैसे चेक्स की मंजूरी मिलती जा रही है, चेक्स की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी से इज़हार तशक्कुर किया।
मजलिस की नुमाइंदगी पर दलित बंधु स्कीम के तहत इस्तेफादा हासिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली मोहम्मद मौजूम खां को तहनीत पेश की। गांधीनगर और शालीबंडा से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर उन्हें इस स्कीम से फ़ायदा हुआ है। इसके लिए वो सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मौजूम खां के शुक्रगुजार हैं। महकमे GHMC की जानिब से शास्त्रीपुरम डिवीज़न के लिए 19 नई गार्बेज लिफ्टिंग व्हीकल्स मंजूर करते हुए फराहम की गई हैं। मज़कूरा कचरे की नक्कासी करने वाली गाड़ियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर करते हुए फराहम की गई हैं। मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने GHMC अहदेदारों के हमरा नई 19 गाड़ियों का इफ्तिताह किया और उन्हें कचरे की नक्कासी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर रवाना किया गया। इस मौके पर सरगर्म कारकुनों के अलावा इब्तिदाई सुदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। जलपली म्यूनसिपलिटी के इलाके शाहीन नगर में साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की 78वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद मुकामी कांग्रेस कायदीन की जानिब से किया गया, जिसमें बदंगपेट मेयर टी नरसिम्हा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर फूल मालाएँ पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर जलपली म्यूनसिपलिटी कांग्रेस यूनिट प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सिद्दीक के अलावा कॉरपोरेटर प्रभाकर रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल बारी और दीगर भी मौजूद थे। మన ఫార్మర్ మినిస్టర్ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ 78వ జన్మదిన సందర్భంగా జల్పల్లికి సంబంధించిన మన ఈ ఏరియాలో ఈ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। మరి దేశము ఒక రకంగా ప్రధానిని కోల్పోయి ఇందిరాగాంధీని కోల్పోయి దీనావస్థ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు యువకుడైనటువంటి రాజీవ్ గాంధీ మరి తెర మీదకి వచ్చి ప్రధానమంత్రిగా తన బాధ్యతలు నిర్వహించి మన దేశాన్ని కాపాడడంలో ఐటీని ముందుకు తీసుకుపోవడంలో అలాగే మరి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలకి అవకాశాలు కల్పించడం కోసం కృషి చేసినటువంటి రాజీవ్ గాంధీని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదని మరి అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి దేశానికి ఇంత గొప్పగా సేవ చేసినటువంటి రాజీవ్ గాంధీ कांग्रेस पार्टी इंचार्ज हल्के असम्बली एलबी नगर माल रेड्डी राम रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो स्कूल्स में नाक़िस मिड डे मील सरबराह कर रही है, जिससे तलबा की सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कायदीन ने सरकारी स्कूल्स का सर्वे करते हुए मिड डे मील की जांच की है जो नाक़िस है। यही वजह है कि उन्होंने उबले हुए अंडे और खाना सरकारी स्कूल में सरबराह करते हुए क्वालिटी पर ध्यान देने का मुतालबा किया है। माल रेड्डी राम रेड्डी इंचार्ज कांग्रेस पार्टी एलबी नगर और अक़लियती क़ायद मोहम्मद मतीन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। 10 लाख नए आसरा पेंशन शुरू किए जाएंगे और हैदराबाद की मूसी नदी पे 15 नए ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। ये सारे केसीआर साहब के खोखले और झूठे वादे हैं, क्योंकि उनके पास इन मासूम जो बच्चे हैं, इन बच्चों को खिलाने के लिए अंडे खिलाने उनको पैसे नहीं है। जो बच्चों को पिछले कई साल से अंडे दिए जा रहे थे, उस अंडों को बंद कर दिया गया। मैं केसीआर साहब से सवाल करूंगा, क्या आप ये अंडों के पैसे
मनगुड़ के बाई इलेक्शन को नज़र में रखते हुए बंद कर दिए, क्योंकि क्या वहाँ के इलेक्शन में शराब पर आप ये पैसा खर्चा करेंगे? क्या करना चाह रहे हैं, ये तेलंगाना की आवाम को जानने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि केसीआर साहब को ये कहना चाहूँगा कि आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे से अगले फ्राइडे तक हम ऑल्टरनेट डे कांग्रेस पार्टी की जानिब से रेवंत रेड्डी साहब के और शब्बीर अली साहब के इंस्ट्रक्शंस पे राम रेड्डी साहब हम लोग सब यहाँ पर दौरा किए और हम लोग यहाँ पर एवरी ऑल्टरनेट डे हम यहाँ पे अंडे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన ఈ గుడ్లు కూడా మనం రోజు చూస్తున్నాం। ఎవరో ఇప్పుడు కొత్త టెండర్లు పిలిచారు। గతంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 80 మంది రైతులు ఈ గుడ్లు సప్లై చేసేది। ఈరోజు ఒకరికి తమిళనాడు అతనికి టెండర్లో ఇచ్చి ఈ గుడ్లు సప్లై కార్యక్రమం వాళ్ళకి ఇద్దామని చూస్తున్నారు। గతంలో 4 రూపాయలు 4.5కు సప్లై చేస్తున్న గుడ్లను ఈరోజు తమిళనాడు అతనికి టెండర్ పిలిచి 7 రూపాయలకి ఇద్దామని చూస్తున్నారు। మనమందరం ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవాలి, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం ఎన్ని నీతులు చెప్తారో, మరి రాష్ట్రాన్ని మేమే ఉద్ధరిస్తున్నాం, మేమే ఇది చేస్తున్నాం అంటారు, కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు ఈ రాష్ట్రాన్ని దోసుక తింటున్నారు కేసీఆర్ కుటుంబం। ఎందుకంటే ఈ గుడ్ల వెనకాల కవిత గారి హస్తం ఉంది। దాదాపు ఒక్క గుడ్డుకు 3 రూపాయలు కమిషన్ మాట్లాడుకొని ఈ రాష్ట్ర రైతులకు ఇవ్వకుండా తమిళనాడులో ఉన్న కాంట్రాక్టర్కి ఇవ్వడం ఏందని ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము అడుగుతా ఉన్నాం। उपल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कुरमन नगर में शौहर के हाथों बीवी के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। मक़तूला की शिनाख्त 32 साल देविया की हैसियत से की गई है। ज़राए के मुताबिक मक़तूला के शौहर दीपक कुमार ने अपनी बीवी का कत्ल किया। इन दोनों को एक 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी भी हैं। इत्तला मिलते ही उपल पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि चंद महीनों से शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे थे और कत्ल की भी यही वजह बताई जा रही है। कातिल शौहर दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उपल पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी पार्टी की जानिब से किए गए फैसले से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि सीपीआई मंगोड़ असम्बली हल्के में टीआरएस उम्मीदवार की तायद करेगी और सीपीआई कायदीन और कारकुन टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए हर तरह का ताउन करेंगे। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बताया कि मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए सीपीआई ने तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए टीआरएस की तायद का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सीपीआई की जानिब से टीआरएस की तायद पर चाड़ा वेंकट रेड्डी और दीगर कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। मीटिंग हुआ, उसमें डिसाइड कर लिया, उसमें अपन ये तेलंगाना में भी बीजेपी आने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। आज पूरे सेंट्रल का पावर है उसको सबको कर रहे हैं और पावर को यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसलिए वो बीजेपी डिक्टेटरशिप पार्टी है, फासिस्ट पार्टी है, रिलीजियनिस्ट पार्टी है। इसलिए उसको हर के लिए हम जो टीआरएस को सपोर्ट करने के लिए डिसाइड कर लिए। टीआरएस पार्टी केसीआर ने ये बताए अपन आने वाले दिनों में मिलकर काम करेंगे और ये तेलंगाना में थ्रूआउट देश पर भी थ्रूआउट इंडिया में भी अपन जैसो ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक ये फोर्सेस के लिए फोर्सेस के लिए मिलके काम करेंगे। ये बीजेपी को हराने के लिए अपन पूरे बीजेपी जो है सो एंटी फार्मर्स, एंटी लेबर्स, एंटी पीपल पॉलिसीज इसको
आने के लिए कोशिश करेंगे। वही मुनगोड़ी में हम अपने को स्ट्रेंथ है बोल के टीआरएस वाले पूछे, इसलिए अपना अपन बीजेपी कराने के लिए। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी, साबिक़ रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी और दीगर कायदीन ने ज़िले नलगुंडे के असम्बली हल्के मंगूड़ में मुनक़िद होने वाले 21 अगस्त के जलसे-आम के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कल मंगूड़ असम्बली हल्के में मुनक़िद होने वाले जलसे-आम को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुखातिब करेंगे और इस जलसे-आम में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत को मुमकिन बनाने के लिए बीजेपी कायदीन और कारकुन सरगर्म हैं। इस जलसे-आम में कोमट राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस और असम्बली की रुकने से इस्तीफ़ा दे दिया था, वो कल अमित शाह से मुलाकात करते हुए बीजेपी में अपने हामियों के हमरा शमूलियत इख्तियार करेंगे। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि बीजेपी मंगूड़ असम्बली ज़िमनी इलेक्शन, जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसमें भी कामयाबी हासिल करेगी और जब कभी आम इंतखाबात का फ़ाइनल मुनक़िद होगा, इस फ़ाइनल में बीजेपी कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में इख्तियार हासिल करेगी। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने आज दोपहर 4 बजे मुनक़िद होने वाले जलसे-आम से कामयाब बनाने के लिए अपने हल्के असम्बली सनत नगर से सैकड़ों कारों के काफ़िले को लेकर वो रवाना हुए, तो दूसरी जानिब वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी गटकसर से सैकड़ों हामियों के साथ कारों की रैली निकालते हुए रवाना हुए। उनके अलावा रुकन असम्बली डी नागेंद्र, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर अरकान असम्बली की जानिब से निकाली जाने वाली रैलियों और कारों के काफ़िले की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक का मसला दरपेश हो गया, जिसकी वजह से हैदराबाद से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। జాగ్రత్తగినండి వెహికల్స్ మనం ఇక్కడ ज़िले नलगुंडा के मुनगोड़ असम्बली हल्के में मुनक़िदा टीआरएस के जलसे-आम में शिरकत करने की गरज से न सिर्फ पार्टी कायदीन बल्कि पार्टी कारकुन भी कार रैलियों के जरिए पहुंचे। जिस वक्त वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर का काफिला एलबी नगर से रवाना हुआ, उस वक्त काफ़ी ट्रैफिक जैम देखा गया। तकरीबन आधा तपून घंटा ट्रैफिक को रोककर वज़ीर-ए-आला केसीआर के काफिले को रवाना किया गया, जिनके पीछे गाड़ियों की एक कतार थी। आवाम को इस काफिले की रवानगी से काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा। Ibasan
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि बिल्कीस बानो के दरिंदा सिफत मुजरिमीन को दोबारा जेल भेजने के अहकामात जारी करें। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में गुजरात हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत भी की गई है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की है कि बिल्कीस बानो केस के सज़ा याफ्ता 11 मुजरिमीन जिन्हें हुकूमत गुजरात ने जेल से रिहा कर दिया है, उनका अज़ खुद नोट लेते हुए इन दरिंदा सिफत मुजरिमीन को दोबारा जेल भेजने के अहकाम जारी करे और हुकूमत गुजरात को इंसाफ के कठघरे में ला खड़ा करे। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहमतुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी के अलावा दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल का मुल्क की आवाम जश्न मना रहे थे। अमृत महोत्सव के नाम पर हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही थी। तारीख़ी लाल किले से वज़ीर आज़म औरत की समाज में इज़्ज़त व तौक़ीर का दर्स दे रहे थे, लेकिन इसी लम्हे रियासत गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने एक औरत के सारे ख़ानदान को ख़त्म करने और इज्तिमाई सुमतरेज़ी की सज़ा भुगत रहे मुजरिमीन को जेल से रिहा करते हुए ये पैगाम दिया कि मुल्क की आज़ादी की ये सालगिरह दरिंदा सिफत मुजरिमीन के लिए तोहफ़ा है, इसलिए उन्हें क़ैद-ओ-बंद की सज़ा से आज़ादी दी जा रही है। फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि कोई मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि दुनिया में इस हैवानी काम की मिसाल मिलना मुश्किल है। मुल्क के मौजूदा हालात में हुकूमत इस वक्त से इंसाफ का मुतालबा करना फजूल है, इसलिए इन कामों कारस्तानियों के पीछे हुकूमत और उसके तहत इदारे हैं। मुल्क में अदलिया उम्मीद का एक टिमटिमाता चिराग है, इसलिए फोरम के ज़िम्मेदारान मुल्क में क़ानून की हुक्मरानी और अदल व इंसाफ को यकीनी बनाने इस वाक़े का अज़ खुद नोट लेते हुए कार्रवाई करें। फोरम ने बिल्कीस बानो की हिम्मत व हौसले की सताइश की और दरिंदा सिफत मुजरिमीन की रिहाई से उस पर और इसके ख़ानदान पर पड़ने वाले असरात से चीफ जस्टिस को आगाह किया है। उन्होंने दुनिया में इंसानी हुकूक़ बिलखुसूस हुकूक़ निस्वां के लिए काम कर रहे इदारे, तंजीमें, मुख्तलिफ फ़ोर्स के ज़िम्मेदारों से कहा कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे इन वाक़यात पर आलमी तवज्जो को मबजूल करवाएँ। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो बिलाखिर हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। हाईटेक सिटी में वाक़ शिल्पा कला वेदिका में मुनव्वर फारूकी के शो के लिए साइबराबाद पुलिस की जानिब से बेनज़ीर सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए थे। तकरीबन 1000 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया गया था, जबकि सादा लिबास में मलबूस पुलिस मुलाजिमीन वेन्यू के अंदर भी देखे गए। वाज़ेह है कि मुनव्वर फारूकी के शो का बाइकआउट करने की गरज से बीजेपी के बशमूल दीगर फाशिस्ट ताकतों ने इंतबा दिया था और वेन्यू पर हंगामा करने की धमकी भी दी गई थी। इसको पेश नज़र रखते हुए पुलिस ने वसीतर बंदोबस्त किया। यहाँ इस बात का तज़किरा भी बेजाना होगा कि रियासती वज़ीर के.टी. रामा राव ने मुनव्वर फारूकी को दावत दी थी कि वो अपने शो का इनेकाद हैदराबाद में करे, और तेलंगाना हुकूमत ने इस शो के इनेकाद को एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया था। क्या हो गया? देखो मैं बहुत सारी सिटीज में परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी जगह से क्या होता है, देखो बहुत स्पेशल क्यों है? अरे नहीं, टीवी नहीं है,
शायरी सुना दो क्या? आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। स्वतंत्रता विजय उत्सव की इख्तितामी तकरीब के लिए एलबी स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी ने डीजीपी और कलेक्टर के हमरा तमाम इंतजामात का लिया जायजा। मुत्तुगुड़ा नलगुंडा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का आगाज़। टीआरएस कायदीन और कारकुन कार रैली के जरिए पहुंचे। वज़ीर आला केसीआर ने जलसे आम से किया खिताब। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के दरिंदा सिफत मुजरिमीन को दोबारा जेल भेजने के अहकाम जारी करे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी भलाई इक़दामात और हुकूमती स्कीमात की अमलावारी में मसरूफ़। सरकारी स्कूल्स में नाक़िस मिड डे मील सरबराह किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।